Hello everyone. So today we are here to discuss the answer key of Jamia Millia University exam of Masters in Sociology. And today I'm going to discuss very important question given in the exam, which will help in further examinations such as JNU entrance exam, Delhi University entrance examination, right? So please look carefully into the question paper and try to understand the questions, right? क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, राइट? जब भी आप किसी भी मास्टर्स लेवल के एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज जो भी यूनिवर्सिटीज आपके सामने हैं उनके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन मैच हो ही जाता है, राइट? So this is the very first page of entrance examination. I am having the set A. ठीक है, मेरे पास सेट ए है और ये किसी स्टूडेंट का है, सो इसमें जो भी मार्किंग होगा आपको वो चेक नहीं करना है. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स, सो यू हैव टू मैच योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स वेरी केयरफुली. Okay, so very first question. Who argued that nation is an imagined community? Okay, so imagined community किसने बोला है? Benedict Anderson, right? This is the right answer. So please correct that. Benedict Anderson has argued that nation is an imagined community. Okay, this is very important question. Next is, it involves investment of capital in the production of commodities with the aims of maximizing profit in order to accumulate more capital. Okay, so here you can see दो चीजें हैं इधर. Production of commodities with the aim of maximizing profit in order to accumulate more capital. Right, आपको capital भी और चाहिए और आपका जो पूरा aim है वो क्या है कि आप profit maximize करेंगे. Right, so its answer will be capitalism. Next, it is a particular form of social inequality. सबसे पहला हिंट तो यही है that वो बोल रहे हैं कि form of social inequality. It refers to the presence of distinct social groups which are ranked one above the other in terms of factors such as prestige and wealth. So इनमें से जो भी हमारे सामने options है, social power, social mobility, differentiation, social stratification. So social stratification is the right answer because it is a particular form of social inequality. ये ध्यान रखिएगा because इधर से ही आंसर क्लियर हो जाता है. Okay, question number 4. The concept sociological imagination was described by, ये तो बहुत फेमस कंसेप्ट है और इसके बिना आप सोशोलॉजी रीड ही नहीं कर सकते हैं, राइट? आप कैसे पढ़ पाओगे जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें सोशोलॉजी में करना क्या है. सो C.W. Mills has given in sociological imagination about how to go with sociology, right? You have to think, something different from the daily routine. वो बोलते हैं कि आपको जो डेली आप सोचते हो किसी भी एक्टिविटी को लेकर उससे थोड़ा सा हटकर सोचना है, राइट? उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी चीजें आपको पता करनी है, उसी को बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकिम मेरियोट एनविसाज टू कंसेप्ट्स नेमली. तो इसका आंसर देखिए. अब मैकिम मेरियोट आपको याद रखना है, मैकिम मेरियोट ने कंसेप्ट्स दिए हैं पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन. ठीक है, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि पैरोक्लाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन होता क्या है. सो बेसिकली जब हम देखेंगे किसी भी चीज को अगर हम स्पेसिफिक से यूनिवर्सल कर रहे हैं, राइट, या फिर यूनिवर्सल से स्पेसिफिक कर रहे हैं, उसी को पैरोक्लाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन बोला है उन्होंने. Please go through this concept because this concept is very important for JNU entrance examination also. Okay, next question. Avoidance and joking relationship are examples of kinship usage. This is the right answer. Okay, next question. It involves the following concept: a belief in the superiority of rational thought over emotion, faith in the ability of technology. Right, सबसे पहले rational thought होना चाहिए, फिर उसके बाद technology होना चाहिए, right? Then you have science to solve human problems. Everything, everything is pointing out towards modernity, right? Post modernity में भी काफी सारी चीजें होती हैं, right? But its answer is modernity. Okay, next is 8th question. They provide general guidelines for behavior and also provide the overall belief about what is good or bad, desirable or undesirable in the society. अब इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि इसका आंसर नॉर्म्स होगा या इसका आंसर वैल्यूज होगा, राइट? सो वैल्यूज और नॉर्म्स में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका आंसर पहले आप देखोगे तो वैल्यूज ही होगा, राइट? इसका आंसर वैल्यूज इसलिए बिकॉज दे आर सेइंग कि जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करता है वो वैल्यूज है, स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करता है वो नॉर्म्स होते हैं. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. सो स्पेसिफिक नॉर्म्स, स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय नॉर्म्स and general guidelines are provided by values. Okay, next question number 9. Who did an ethnographic study of Trobriand Island and wrote the Argonauts of Western Pacific? So its answer you must know because this is very important और ये काफी important study है और
ये बहुत बार अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है. सो मेलिनोवस्की इज द आंसर. नेक्स्ट, अनुलोमा एंड प्रतिलोमा आर द टाइप्स ऑफ मैरिज. आपको पता होना चाहिए. और अनिलोमा और प्रतिलोमा को और भी कुछ बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी सोशल कंस्ट्रक्शन. सी, जेंडर इज कंसिडर्ड टू बी अ सोशल कंस्ट्रक्शन. जेंडर को हम ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट. किस तरीके से सोशलाइज किया जाता है चिल्ड्रन को, और उसके बाद उनको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, क्या क्या चीजें उनको सिखाते हैं. इवन द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंस इन द टॉयज, राइट, डिफरेंस इन वॉकिंग, एवरीथिंग, प्लेइंग, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम ही जेंडर को सोशली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट. तो बेसिकली आंसर इज जेंडर. नेक्स्ट, खाप पंचायत आर प्रेवलेंट इन विच स्टेट. सो इट इज इन हरियाणा. आप सभी को ये पता होगा खाप पंचायत के बारे में. These are oversimplified or untrue generalization about social groups. Right, untrue. तो untrue यहाँ से ही आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए that stereotype is the answer because they are saying untrue, है ना. So stereotype is the answer. ध्यान रखना. Okay. Next, cricket club is an example of. Okay. So अब बहुत लोग यहाँ पर institution करके आएंगे because they think कि cricket club में थोड़े rules होते हैं, ये सब होता है. But अगर आप क्रिकेट क्लब को देखोगे सो इट इज इनफॉर्मल. फॉर्मल इनफॉर्मल ही होता है बेसिकली, लेकिन फॉर्मल भी हो सकता है. लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसमें बहुत सारे जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, राइट. अगर आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स पता है तो ऑब्वियसली आप क्या करके आओगे, ग्रुप टिक करके आओगे. सो इट्स आंसर इज ग्रुप. नेक्स्ट, it is a group which an individual admires and aspires to be part of it. He or she can become psychologically attached to it and time also imitate it. Okay. सो इमिटेट भी करते हो और उस ग्रुप का पार्ट भी बनना चाहते हो. ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है, राइट. सोशल ग्रुप तो बहुत होते हैं, क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप, ये तो बहुत अलग अलग, ये और कुछ क्लासिफिकेशन है, राइट. रेफरेंस ग्रुप इज द वन. सो रेफरेंस ग्रुप, आपको ये बताना है कि रेफरेंस ग्रुप किसने दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो रेफरेंस ग्रुप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होता है. सो इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा. Next, it is a system in which members of a group or community participate collectively in taking major decisions. Obviously, मोनार्की में ऐसा नहीं हो सकता है. ब्यूरोक्रेसी का एक अलग पूरा स्ट्रक्चर होता है, राइट. ओलिगार्की में भी ऐसा नहीं होता है. So participatory democracy is the answer. Next, who defined the process such as Brahmanization, Westernization and Sanskritization? ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से ब्राह्मणाइजेशन से संस्कृताइजेशन पर एम.एन. श्रीनिवास पहुंचे, उन्होंने क्यों ऐसा किया कि पहले ब्राह्मणाइजेशन दिया फिर संस्कृताइजेशन दिया, ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज द आंसर इज एम.एन. श्रीनिवास. ओके. 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप ट्राइब्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हो तो प्लीज इसको रीड करो, बिकॉज ट्राइब एक ऐसा सेक्शन है जो हर पेपर में आपको दिखेगा. और ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आपको बहुत मेजरली देखने को मिल सकती हैं, राइट. सो गोंड्स, जारवास, माल पहाड़िया, ये सब वहां पर है. बट इसका आंसर क्या होगा, सी. योगालिंगास इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब. ओके. नेक्स्ट, which of the following is not an example of dominant caste as defined by M.N. Srinivas? So dominant caste के सबसे पहले तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए, राइट. करेक्टरिस्टिक्स जो M.N. श्रीनिवास ने एक्सप्लेन किया था कि जब हम डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. अगर कोई कास्ट डोमिनेंट हम बोल देते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. सो बेसिकली न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, लैंड, ये सब उन्होंने बताया हुआ है, राइट. आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो जाकर रीड कीजिए, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाय एम.एन. श्रीनिवास. एंड द आंसर इज मुंडा. Okay, so Jat, Patidars and Marathas were the dominant caste in their respective time period, but Munda is a tribe, right? So Munda will be the answer. Okay, next question. According to Karl Marx, it is a subjective feeling, a sense of powerlessness. Powerlessness से ही समझ आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, alienation, right? फिर भी हम आगे पढ़ते हैं. Powerlessness and isolation, and it is also a structural analysis of economic system that deprive men from both the fruits of their labor and control over work. ओके. सो आपने 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन पढ़ा होगा. 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन एग्जैक्टली डिफाइन करता है ये सब चीजें, और उधर ही ये पता चलता है कि एलिनेशन किस किस तरीके से हो सकता है. सो इट्स आंसर विल बी एलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस्ड और रिकॉर्डेड क्लोज टू द इवेंट आर नियरेस्ट वन कैन गेट द ट्रूथ, राइट. प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा विल बी द आंसर.
और रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से काफी क्वेश्चंस आते हैं जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि अगर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट वीक है तो उसको सबसे पहले उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी is very important, and they are going to ask number of questions from this part. Okay. Next question, who made a distinction between mechanical and organic solidarity? This is a very easy question. Emile Durkheim, right? Okay, next, who was the sociologist who defined social action perspective and focus in the Verstehen? Okay, so सबसे पहले तो ऊपर social action दिया हुआ है, उसके बाद Verstehen भी given है। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि Max Weber will be the answer. Okay, who distinguished between two types of social bonds which termed as Gemeinschaft and Gesellschaft? ये बहुत फेमस कंसेप्ट है फर्डिनेंड टोनिस का, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या मतलब डिफरेंस होता है। Okay, next, it is conceived in terms of the control of man over things. Okay, a control which recognized by society more or less permanent and exclusive. It may be private or common, right? So देखिए, सबसे पहले आपका कंट्रोल होगा उस पर, है ना, और सोसाइटी को भी आपका कंट्रोल पता होगा कि आपका उस चीज पर कंट्रोल है, चाहे वो परमानेंट हो या नहीं हो, वो बता रहे हैं। उसके बाद वो प्राइवेट भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो प्रॉपर्टी होगा, राइट। फैमिली किनशिप ये सबका तो नहीं होता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च टेक्निक through which standardized data is collected from a large number of people. This data is usually in statistical form. और statistical form देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, the survey will be the answer, right? So option C is the correct one. Okay, next. Okay, so the next question is who differentiate between class, status and party, right? So इसका आंसर है मैक्स वेबर, आपको पता होना चाहिए। और इसी तरीके से एक वर्क और भी है जो हमें आंद्रे बेते ने दिया है, उसका क्या नाम है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी वॉज रिटन बाय W.H. वाइट, ये पता होना चाहिए, ये आपकी हाल नंबर्स बुक में आपको काफी अच्छे से गिवन है, राइट। ऐसी ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप रीड करेंगे तो उसमें सबसे मेजर काम जो है वो ये है, राइट, जो बहुत फेमस है। ओके, लुकिंग ग्लास सेल्फ वाज कॉइन्ड बाय C.H. कूले, राइट, यू मस्ट नो दैट। उसके बाद असेंबली लाइन इज एसोसिएटेड विद, ये कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और उन्हें बताया है, फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका वाज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ रेसेस, राइट। When things that were earlier not traded in the markets become commodities, so according to me its answer would be commodification. कुछ लोग commercialization भी बोल रहे हैं, but majorly जो हमें लग रहा है वो commodification है, right? अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि ये correct है या नहीं, but मेरे हिसाब से commodification will be the answer. Okay, next is critical theories associated with Frankfurt School. This question has been repeated also. और Marwaris are classical example of business community. Then a ranking of statuses within an organization according to some criteria of evaluation accepted as relevant within the system. A ranking of statuses, right? So this must be hierarchy. The theory of communicative action was formulated by Jürgen Habermas. ये काफी अच्छा वर्क है इनका, आप इसको पढ़ सकते हैं बिकॉज जर्गन हैबरमास के बारे में बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, next is, it is a large scale peculiar sort of community founded on the basis of common. Okay, so आपके पास common क्या क्या है उसमें? Cultures, historical, political institution like a shared religion, language, ethnicity, history or regional culture, right? So the answer will be nation. Nation is a large scale peculiar sort of community, right? Next, who defined the dramaturgical analysis? So it is Irving Goffman. आंसर वुड बी दिस। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अगर आप जैसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एग्जाम देखेंगे या फिर एनी अदर एग्जाम लाइक द जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम, दे हैव आस्क्ड यू अबाउट दिस, राइट। सो प्लीज रीड अबाउट इरविंग गॉफमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। Then Gunnar Midhan in his massive study of South Asian countries wrote Asian drama. Its answer would be B, Asian drama. Next, the distinction between great tradition and little tradition was made by Robert Redfield. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रमोटेड द थियरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म? हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज स्टार्टिंग ही यहीं से की होगी सोशियोलॉजी पढ़ते हुए, राइट। सो ये हमेशा याद रखना है। द टर्म पॉजिटिविज्म वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। पॉजिटिविज्म
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, राइट। सो पॉजिटिविज्म जब भी आप पढ़ोगे काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और यहीं से साइंटिफिक स्टडी और ये सब जो इमर्ज हुआ है, आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। Okay, next question. It is being defined as a hierarchical organization structure designed rationally to coordinate the work of many individuals in the pursuit of large-scale administrative tasks and organizational goals. Okay, first उन्होंने पहले ही हिंट दे दिया hierarchical organization, then उन्होंने बोला rationally, right, and large-scale administrative task, तो answer would be bureaucracy, right. ब्यूरोक्रेसी पे वर्क किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए, फिर उसमें जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक आइडियल टाइप उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या उन्होंने चीजें बताई थी, राइट। सो कौन थे वो? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने वर्क दिया ब्यूरोक्रेसी पर, और उनका जो ब्यूरोक्रेसी वर्क है वो जरूर पढ़िएगा। Next question. It refers to the method people use to make sense of world about them. It is the study of everyday life. So when you are saying that it is a study of everyday life and refers to the method, जो method है, तो obviously it is ethnomethodology. फिनोमेनोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस और थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाती है उसमें, ठीक है। आप इसको भी पढ़िएगा बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि एथनोमेथोडोलॉजी टिक करें या फिनोमेनोलॉजी। ये किसी भी स्टूडेंट को एक सेकेंड के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट व्हेन यू नो दैट एथनोमेथोडोलॉजी इज अ मेथड एंड दैट आल्सो दैट इज यूज्ड बाय द पीपल टू स्टडी everyday life, your answer will be correct. Okay, next is it refers to the components of accumulated resources, immaterial or material, which the people inherit, employ, transmute, add to and transmit. Okay, so the answer would be culture, right. Next question. Who defined the concept of hegemony? Antonio Gramsci, right. This would be the correct answer, D. Okay, 47th question. It refers to the set of ideas about the nature of man, nature of society, and how life is ought to be. It may be very structured, may reflect underlying feelings. So set of ideas, पहले ही देख लो, set of ideas given है तो answer होगा ideology. Okay, 48th question. Who describe the concept of information society? Manuel Castle. Manuel Castle is the answer, और इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। 49th. Who coined the term risk society? जब भी आप कोई भी section लोगे, like the section given in genuine entrance exam syllabus, modernization, globalization, development, in that section you have to read about risk society, and it was given by Ulrich Beck. So D is the correct answer. 50th question. It was an agrarian struggle in the rural areas of Bengal in the colonial period. So it will be Tebhaga movement. This will be the answer. Okay, so you guys have to remember this. Okay, next question. The concept of post-industrial society was defined by Daniel Bell, right? So Daniel Bell would be the correct answer. Next question, 52. Which book has been written by Dr. B.R. Ambedkar? Annihilation of Caste is the correct answer. And इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको जो बाकी के ऑप्शंस दिए होते हैं वो हमेशा याद रखना, राइट। अगर वो बुक्स किसी और ने लिखी हैं तो उसको जाकर सर्च करो, उसको पढ़ो। इसी तरीके से भी किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करना होता है। Okay, who wrote the book Homo Hierarchicus? So it was written by Louis Dumas. Louis Dumas का ये बहुत famous work है, ये आपको पता होना चाहिए। Next is, according to him, in India tribes are peasants. So its answer would be C, Andre Bete. Next question, because GS Ghurre का जो famous है tribe section में वो backward Hindus है, right? GS Ghurre का वो आपसे पूछ सकते हैं backward Hindus पे question, ये ध्यान रखिएगा। Next, M.N. Srinivas defines it in terms of sizable amount of arable land holding and strength of numbers, high place in local hierarchy. ये सब चीजें अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जिसमें डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, राइट। सो जहां पर हमने मुंडा टिक किया था, सो डोमिनेंट कास्ट वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. It refers to range of political activities that are founded in the shared experiences of particular marginalized groups such as gender, race, ethnic group, etc. So it is identity politics, right? Next, the theories of middle range was being defined by R.K. Merton, right? इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रैंड थियरी किसने दिया। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए किसने दिया है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Okay. Next, it requires a sustained collective action over time. It is often directed against the state and takes the form of demanding changes in the state policy and practice. It must be marked with some degree of organization. उसमें organization भी होना चाहिए, leadership भी होना चाहिए,
ऑब्जेक्टिव्स, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज। सो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो सोशल मूवमेंट मिलेगा, right? There's also one section by social movement in genuine entrance exam syllabus. So you guys have to do what is social movement, what are the, how to define social movement. अगर आपको ये social movement की definition पता है तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, right? Next question is Jharkhand movement was for separate state. ये तो बिल्कुल objective question है. Next, it is a common practice to pre-test the questionnaire or small number of people before it is used in the honors. This is called, okay, जब भी किसी small level पर कोई study किया जाता है, जैसे pre-test ये बोल रहे हैं, so it will be pilot study, right? So C will be the right answer. Okay. 61. This is an American term used to describe workers in manual industry. Its answer would be blue collar. Next, the notion of time slavery is related to. टाइम स्लेवरी किससे रिलेट किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। टाइम स्लेवरी का मतलब क्या है कि आप किसी भी एम्प्लॉय से, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है वो 10-12 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास कुछ डेडलाइंस है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसको वो कंप्लीट करने में लगा हुआ है, और वो टाइम स्लेवरी का कंसेप्ट किसी से रिलेट करना हो तो कहाँ पर होगा? आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में कि किस तरीके से कितना बर्डन है और किस तरीके से काम किया जाता है, राइट? नेक्स्ट, 63rd, according to Jen Raymond, the footloose labor means, footloose से समझ जाना चाहिए था कि it would be migrant workers. So A would be the correct answer. 64th, Naxalbari is a. Okay. So यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये माइस मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट लिखा है, बट नक्सलबरी अगर हम देखेंगे so it is a village in West Bengal, right? So C would be the correct answer. Okay. 65th, a reference to a source of information or quotation given in a text. आप जब भी कुछ रेफरेंस देते हो तो उसको साइटेशन बोलते हैं, ठीक है? अभी जब आप मास्टर्स करोगे तो आपको बहुत सारी जगह पर साइट करना होगा, या आपने अपने ग्रेजुएशन में भी किया होगा, सो साइटेशन इज द करेक्ट आंसर. 66, communication in the form of words as speech or writing or even attitude or gesture, it will be discourse. Discourse is the correct answer. According to him, power is something that is not concentrated in one place or in one hand. This is very important question. Remember that. Power is intimately linked with knowledge. Okay, so power and knowledge. ये concept किसका है? मिशेल फूको. और यहाँ पर जो ये ऑप्शंस गिवन हैं, these four are very important. ठीक है, अगर कहीं पर भी आप देख रहे हो मिशेल फूको और जिगमंड बॉमन, राइट, एंटोनियो ग्राम्सी, देन यू हैव अल्ड्रिच बेक, एंथनी गिडेंस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं. ओके, हु डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स? पैटर्न वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए. टालकट पार्सन, उन्होंने 4 पैटर्न दिए थे, आपको बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज feminist standpoint epistemology was defined by Sandra Harding, right? This would be the correct answer. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो feminist standpoint से बोलना क्या चाह रहे थे, right? उसके बाद according to him science was characterized by commitment to a scientific paradigm. Okay, so first hint जो इन्होंने यहाँ पे दिया वो क्या है? Scientific paradigm. और यहीं से जो आंसर है वो आपको पता चल जाना चाहिए था, which consists of a complete theory and framework within which scientist operates. So answer would be B, Thomas Kuhn, right? Next is a descriptive statistic that gives the measurement of location of most commonly the mean, median and more of a data set. These are the different types of averages. So the answer would be A, central tendency. Next question, the small part of whole population selected to show the whole is like. ठीक है, अगर हो सकता है इसमें आपको confusion हो, ठीक है, but the next thing, there are two main types, random and non-random. So you guys have done, right? अगर आपने research methodology पढ़ा है तो वहां पर आपने किया होगा random and non-random sampling. So its answer would be C, sample. Next question, an attitude of regarding one's own culture or group as inherently superior. So आपको जब अपना कल्चर सुपीरियर लगता है, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार हर अलग अलग क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है. एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल लैग, ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं कल्चर से रिलेटेड जो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे, right? So you guys have to make a list of all the terms related to culture and then do that, right? Next question, participant observation involves. Okay, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. जैसे बोला है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आपको पता होगा,
when you participate, when you go to a particular field and then you participate with the people and then you observe them closely, right? So इसमें चार ऑप्शन गिवन है. Let's start from the end. Showing a sympathetic interest in the community and its activities. Yes, आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है उनकी कम्युनिटी में और उनकी एक्टिविटीज में. अगर आपको किसी भी फील्ड को स्टडी करना है, राइट, अगर आप किसी फील्ड को स्टडी कर रहे हो तो आप उसके अंदर जो लोग रहते हैं, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको समझोगे, उनको इंटरेस्ट शो करोगे, तभी वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, राइट. सो दिस कैन बी ओके डूइंग एग्जैक्टली एज अदर पीपल डू इन द कम्युनिटी टू, राइट. तो आप उसी तरीके से चीजें करोगे जैसे कम्युनिटी में लोग कर रहे हैं. ओके, टेकिंग साइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्प्लिटिंग द कम्युनिटी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट. एंड अ टोटल इमर्जन इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड. ओके, नाउ शोइंग अ सिंपैथेटिक इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट शो करने से कुछ भी नहीं होगा, राइट. और हर काम आप वैसा नहीं कर सकते जैसा कम्युनिटी कर रही है. सो द आंसर वुड बी अ टोटल इमर्जन इन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड. ठीक है, ये ही इसका करेक्ट आंसर है. ए वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, राइट. सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या इन्वॉल्व करता है कि आपको पूरा कम्युनिटी में इमर्ज हो जाना है. उनको पता नहीं चलने देना कि आप एक रिसर्चर हो और आप वहां पर रिसर्च करने आए हो. अदरवाइज दे वोंट गिव यू द करेक्ट आंसर्स और जो भी आप चीजें पूछोगे वो सही बताएंगे ही नहीं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्राइब? कॉमन लैंग्वेज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, ये रिपीट किया गया है. क्रिटिकल थियरी इज एसोसिएटेड विद फ्रैंकफर्ट स्कूल. Next question, it is a religious movement as well as the Muslim missionary organization based on the work of prophets started in 1926 which aims at spiritual reformation. Its answer would be Tablighi Jamaat, right? So A would be the answer. Next question. Okay, it is measured by number of species found in an area. The answer would be biodiversity. It's a process of growing interdependence between different people, regions and countries in the world. इंटरडिपेंडेंस, दैट मीन्स अब आपको, बिकॉज देखो अगर आपने दर्कहाइम का वर्क रीड किया है सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दी स्पेशलाइज्ड पार्ट जहां पर वो बोलते हैं स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर. व्हेन यू हैव स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इंटरडिपेंडेंस इंक्रीजेस, राइट. अगर आप स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हो सोसाइटी के अंदर, जैसे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, सामने वाला कुछ और फील्ड में स्पेशलाइज है, सो ऑब्वियसली आपको एक दूसरे की नीड होगी, राइट. सो इंटरडिपेंडेंस उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है in the world as social economic relationship come to stretch worldwide stretch भी हो रहा है. So ये सब चीजें आपको कहाँ point कर रही हैं? Globalization, right? Next question, in traditional Indian society the system by which each caste group rendered certain services to other caste groups was called. Okay, so there are two options. इसके दो options correct हो सकते हैं, वर्णा system और जजमानी system. अब आपको इन दोनों में से choose करना है, right? वर्णा सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात जो आपको दिया गया था वो ऑक्यूपेशनल हायरार्की थी, राइट. कि किसी का वर्क कौन क्या वर्क कर सकता है. जैसे ब्राह्मण्स को बोला कि ब्राह्मण्स को हेड माना जाता है कि उनमें मतलब जो नॉलेज है वो ब्राह्मण्स का पार्ट है, ये वो. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दे आर सेइंग बाय विच ईच कास्ट ग्रुप रेंडर सर्टेन सर्विसेज. यहाँ पे सर्विसेज की बात की गई है एंड द ऑप्शन इज जजमानी सिस्टम, राइट. सो जजमानी सिस्टम किसने दिया? जजमानी सिस्टम में जजमान्स और ये सब कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किनशिप रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू. सो इट्स आंसर वुड बी बी, मैरिज एंड ब्लड टाइज. आज तक आपने कभी एडॉप्शन पर ना तो पढ़ा होगा, राइट. और एडॉप्शन को आपको इंक्लूड नहीं करना बिकॉज एडॉप्शन उन्होंने इसलिए दिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ. लेकिन आपने जब भी किनशिप का चार्ट बनाया होगा आपने दो ही तरीके से बनाया होगा, मैरिज एंड ब्लड टाइज. ठीक है, तो ये याद रखना है. Patriarchy, the literal meaning of this term. Okay, so rule of husband, rule of brother, rule of father, rule of male partner. अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब बोला husband, ठीक है, और brother और father, so आपको पता चला कि ये तो बहुत पर्टिकुलर रिलेशन पर जा रहे हैं, राइट. और तब आपने टिक किया होगा रूल ऑफ मेल पार्टनर. बट इसका लिटरल जो मीनिंग है पेट्रियार्की, राइट, जो हमेशा डिफाइन किया जाता है, इट इज रूल ऑफ फादर. सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, रूल ऑफ फादर में बताते हैं वो किस तरीके से फैमिली में जो पेट्रियार्की चलता है वो किस वजह से चलता है, मेल हेड, राइट. और बेसिकली वो फादर ही होते हैं, राइट, योर ग्रैंड फादर और योर फादर, राइट. सो इसीलिए पेट्रियार्की का मतलब है रूल ऑफ फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in his analysis of class groupings in capitalist society which of the following is not discussed by Max Weber. Okay, Max Weber ने कौन सा क्लास डिस्कस नहीं किया है? There are classes defined by Max Weber,
right? So cultural capital is not the one which has been discussed by Max Weber. Cultural capital किसका है concept? बोर्डियो का. Cultural capital, social capital, ये आपको ध्यान रखना है because बोर्डियो is very important, right? बोर्डियो के बहुत सारे works हैं जो बहुत important है और आपको याद रखना है. Okay. Who coined the term conspicuous consumption to describe wasteful expenditure in capitalist society? Conspicuous consumption का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप कंज्यूम कर रहे हो शो ऑफ करने के लिए, राइट? आप बहुत सारी चीजें खरीद रहे हो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए. तो ये जो सोसाइटी जैसा बनता जा रहा है उसको वेबलन ने एक्सप्लेन किया है. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द तेभागा एंड तेलंगाना अपराइजिंग वर पीजेंट मूवमेंट, ये तो सभी को पता होगा. नेक्स्ट, it is a condition in which many people in social system have a weakened respect for some social norms or norms. ठीक है, सो इसमें आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज की, तो इसको एनोमी बोलेंगे हम, राइट? एनोमी कंसेप्ट किसने दिया है और इसका क्या मीनिंग है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, नेक्स्ट इज Max Weber traces the rise of capitalism to the presence or absence of. See, in this, I too have doubt. ये रेनेसेंस भी हो सकता है, ये कैल्विनिज्म भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी कैल्विनिज्म वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? बिकॉज आपने जब पढ़ा होगा प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो कैल्विनिज्म को जो फॉलो कर रहे थे वो किस तरीके से अलग अलग मेथड यूज कर रहे थे. लाइक वो कोई भी हॉलीडे नहीं लेते थे, वो अल्कोहल वगैरह नहीं लेते थे, उनके लिए जो भी था वो गॉड के लिए था. एवरीथिंग दे वर डूइंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, राइट? एंड उनको पता था एक प्री डेस्टिनेशन का कंसेप्ट है जो, और कॉलिंग का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट रिलेटेड है कैल्विनिज्म से, और मैक्स वेबर ने कैपिटलिज्म वहीं से ट्रेस किया. ठीक है, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, राइट? बाकी आंसर के आने पर पता चलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑकबर्न. बहुत बार मैंने बताया कि ऑकबर्न का जो कंसेप्ट है कल्चरल लैग, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, इसके बीच में जो लैग आ जाता है, राइट? तो वही कल्चरल लैग है. तो ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है बिकॉज मैंने बोला है कि कल्चर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पॉपुलर कल्चर रेफर्स टू द कल्चर ऑफ, अब इनमें से बहुत लोगों ने, जैसे इसमें टिक है ये हायर क्लासेस, हो सकता है बहुत लोगों ने हायर क्लासेस टिक किया होगा बिकॉज उनको लगता है पॉपुलर कल्चर तो उसका होगा जो डोमिनेंट होगा, राइट? बट दिस इज इनकरेक्ट. its answer would be masses because popular culture is also known as mass culture. Next, according to Muslim law, meher is the amount fixed at the time of marriage to be paid to the bride if divorce happen. ये इसका correct answer है C. The institution of, okay, this question is misprint, right? इनको यहाँ पर question जो देना था वो ये था कि the institution of langar is central to Sikhism, which means लंगर आपको पता होगा, राइट? इट इज अ फ्री कम्युनिटी किचन. अगर आप दिल्ली में हो या कहीं भी हो, चलो वो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप दिल्ली में बंगला साइड में आप देखोगे तो हमेशा वहां पर लंगर लगता है और ये सब चीजें होती है, राइट? सो लंगर उसी की बात कर रहे हैं, फ्री कम्युनिटी किचन, एंड इट इज वेरी फेमस. सिखिज्म का बहुत फेमस पार्ट है लंगर. ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए और इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, tribals like Toda, Irulas, Kadars, Kurumbas and Pania belong to साउथ इंडिया. सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आपको पानिया देख के समझ आना चाहिए कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, राइट? सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी इज अ साइंस व्हिच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. मैंने बहुत बार बताया था कि मैक्स वेबर का जो सोशियोलॉजी का डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गिवन है आपको मैक्स वेबर, राइट? सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Next question, a social entity that successfully claims the monopoly of legitimate use of physical force with a given territory. So ये state की definition है जो मैक्स वेबर ने दी है. आप जाकर सर्च कर सकते हैं और इस definition को याद ही कर लो, right? Because this is very important. Okay. Next is unwritten traditional literature in the form of stories, proverbs, legends, songs, etc. It is folklore, not folkways. ठीक है, ये ध्यान रखना. Folkways would be the incorrect answer. Folklore correct answer है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who among these is associated with participant observation? Okay, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जहां पर उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एक स्टडी पूछी थी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, which was by W White, राइट? सो इधर उन्होंने डायरेक्टली उसका पूरा नाम ही लिखा हुआ है. सो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से रिपीट ही किया गया है, विलियम एफ वाइट. ओके, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. Last some questions are here.
वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स वन। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो सिमोन द beauvoir ने दी है। और मार्गरेट मीड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द सेकंड सेक्स, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो मार्गरेट मीड का बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हमेशा याद रखिएगा। Okay, next is a wife can obtain divorce from husband provided he agrees to her proposal of divorce among the Muslims. Such divorce is called khula, right? मेरे अकॉर्डिंग ये मुबारक भी हो सकता था, बट मतलब मुबारक में आपको ये बताते हैं कि उधर आपका इद्दत पीरियड होता है, वो सब चीजें होती है, तो खुला विल बी द करेक्ट आंसर, डी। ओके, 99 a theoretical statement that has not yet been tested against the data collected. Okay, अभी ऐसा स्टेटमेंट जो अभी टेस्ट भी नहीं किया गया, राइट। यहाँ से ही सबको पता चल जाना चाहिए था, दैट आंसर वुड बी हाइपोथेसिस but which is possible to test by providing clear evidence for support or rejection. वो बाद में रिजेक्ट भी कर सकता है, right? So answer है hypothesis. Which constitutional amendment assured the grassroots democracy or decentralized governance? 73rd amendment. 73rd amendment बहुत बार पूछा जाता है, right? और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं और आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। SC ST से रिलेटेड माइनॉरिटीज पर जितने हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, राइट। और इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको किस तरीके से करना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, राइट, और उसके आपको ऑप्शंस भी गिवन है, तो आपको ऑप्शंस भी रीड करने हैं जो बाकी के ऑप्शंस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने हाइपोथेसिस बोला तो बस हो गया, राइट। यू हैव टू रीड व्हाट इज आइडियलिज्म, हाउ लॉ इज रिटन हियर, इंडिकेटर, सो दिस यू हैव टू लर्न, राइट। सो इस तरीके से आपको अपना ये कंप्लीट करना है। So we are done with the paper. I think you guys have secured well, and all the best for your selection. So thanks for watching this, and in case if you need course or test series for master's entrance in sociology, you guys can contact us. You can call or WhatsApp at this number. We are working as a team for genuine entrance examination. और आपको कोर्स में काफी सारी चीजें मिलेंगी जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन वी विल प्रोवाइड यू होल ऑफ द सिलेबस, विल प्रोवाइड यू सम पीडीएफ्स और हैंड रिटन नोट्स आल्सो, राइट। सो आपको कोर्स में भी सब चीजें मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी को भी काफी अच्छे से हमने बनाया है। अगर वो टेस्ट सीरीज का पार्ट आप बनते तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेक्टेड ही थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और आ गया हो, राइट। सो वी आर गिविंग दिस श्योरिटी and earlier also we were having good results, so hope for the best and all the best for your selection. Thank you.